Now beta we consider another question of your exercise 1.2. Question number 1. Now we consider another question of your exercise 1.2. Question number 1. First we consider set exercise 1.2. Question number 1. First we consider this set A, set B and universal set U. Universal set exercise 1.2. Set of universal is A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G. E, F, G, and set of A is equal to, according to your book, F, A, C, E. F, A, C and E, and the set of B is equal to E, G, D, F. E, G, D and F. सेट ऑफ यूनिवर्सल एंड सेट ऑफ ए एंड सेट ऑफ बी एंड 1 to 8 पार्ट्स. ये आपके 1 से लेकर 8 पार्ट हैं आपके पास एक्सरसाइज 1.2. नाउ वी कंसीडर दी फर्स्ट क्वेश्चन 1.2. क्वेश्चन नंबर 1. दिस इज द ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए. यूनिवर्सल set of universal is A, B, C, D, E, F and G minus set of A, F, A, C and E. Now we call the same element. Same element is F, A, C and E. And the remaining element of universal set B, D and G. B, D and G. This is the answer of A complement. Question number 2. B complement. Very easy concept. आप आराम से solve कर सकते हैं. Do yourself. And third part and question number 3. A intersection B. A intersection B. Value of set A, F, A, C and E intersection E, G, D, F. E, G, D, F. Due to sign of intersection you find out the common element of both set. तो कॉमन एलिमेंट आपके पास जो है उसको आप मेंशन करेंगे ड्यू टू कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरसेक्शन. कॉमन एलिमेंट E. E and F. E and ये दो आपके पास कॉमन एलिमेंट हैं. दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 3. Question number 4. Do yourself. A intersection A union B complement. A union B complement. आपको सॉल्व करेंगे. अच्छा, मैं क्वेश्चन इसलिए आपके पास मेंशन कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन की ये प्रॉब्लम थी कि आप बुक की में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने क्वेश्चन आपके साथ मेंशन कर दिए. इसी वजह से मैं साथ साथ उनकी क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं वो भी मेंशन करते जा रहा हूँ कि क्वेश्चन 1 में क्या है, क्वेश्चन 2 में क्या है, क्वेश्चन 3 में क्या है. और सेट आपके पास यही है कि दिस इज अ सेट ऑफ यूनिवर्सल, सेट ऑफ ए एंड सेट ऑफ बी. इस चीज़ की आपको यूज़ करते हुए आप ये तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है बेटा. क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5. Exercise 1.2. Question number 5, exercise 1.2.
1.2 क्वेश्चन नंबर 5 ए, क्वेश्चन नंबर 5 ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बेटा फर्स्ट यू फाइंड द बी कॉम्प्लीमेंट एंड नाउ यू फाइंड द ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट वी फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट U universal minus set of B. Very simple phenomena. The set of universal is A, B, C, D, E, F and G minus set of B, E, G, D and F. सेम एलिमेंट आप क्रॉस कर दीजिए D and F. Now this remaining element of universal set is the answer of B complement. The remaining element of universal set are A, B, C. This is called B complement. Now we find A intersection B complement. First you write the A set. The set of A is F, FA, C and E, symbol of intersection. Now we write the set of complement of B, A, B and C. A common element and C common element. ये दो एलिमेंट आपके पास कॉमन रहेंगे। दिस इज योर आंसर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए एंड सी। ओके, तो फर्स्ट यू फाइंड द बी कॉम्प्लीमेंट एंड नाउ वी फाइंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 6? वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। Question number 6. Question number 6. A intersection A complement intersection B complement. You find out the very easy format. So do yourself. आप समझ चुके हैं, प्रीवियस कॉन्सेप्ट है आपके पास, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। एंड द क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 of exercise 1.2, universal set union null set. Universal set is the symbol of union and null set. Solve this question. Universal set, set of union and null set. First you write the universal set. A, B, C, D, E, F and G. Union, null set. This is your null set. Now combine these two set. अब ये तो आपके पास एक सेट तो बिल्कुल एम्प्टी सेट है, तो द आंसर इज यूनिवर्सल सेट। तो याद रखिएगा, जब भी आप यूनियन मालूम करते हैं विद कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिवर्सल एंड नल सेट और एम्प्टी सेट, तो आपके पास जो आंसर होता है, इज द आंसर ऑफ यूनिवर्सल सेट। ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी, इस इज योर आंसर। क्योंकि बेटा आप देख सकते हैं कि नल एम्प्टी सेट है, इसको आप कंबाइंड फॉर्म में क्या लिखेंगे? दिस इज द आंसर ऑफ यूनिवर्सल सेट, यूनियन एंड नल सेट। क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन। Question number 8, exercise 1.2, universal set, intersection, null set. Due to this concept आप इसको easily solve कर सकते हैं, जो मैंने आपको concept दिया, do yourself. तो 1 to 8 क्वेश्चन इस तरीके से आपके पास बहुत सिंपल फिनोमेना से आपके पास कंप्लीट हो गए क्वेश्चन। ये आपके पास सेट्स की फॉर्मेशन मौजूद है बेटा, और कुछ पार्ट्स मैंने आपको सॉल्व करवा दिए, कुछ आपको मैंने मेंशन कर दिया कि डू योरसेल्फ, तो वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। और क्वेश्चन भी आपके सामने मौजूद हैं ऑन बोर्ड, और जो उनकी सेट्स की जो एलिमेंट्स हैं वो भी आपके सामने मौजूद है, तो आपको बुक की प्रॉब्लम भी इसमें नहीं होगी। ठीक है बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट ऑफ
De Morgan's law, union, intersection in the combination of universal union and intersection, universal and empty set। तो ये कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे हमने बात की, उसको हमने समझने की कोशिश की। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपके पास एग्जाम में आपके पास आते हैं, आप उनको सॉल्व करना है। और ख़ासतौर पर डी मॉर्गन्स लॉ का जो आपका प्रूफ है वो आपके पास 5 मार्क्स के एग्जाम में 1 पार्ट की फॉर्मेशन में आएगा, या प्रूफ डेट एनी पार्ट आपके उसमें हो सकता है। ठीक है बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ एंड यूनिवर्सल एंड यूनियन सेट। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।